Namaskar students, welcome again with the chapter number 5, Judiciary. Yesterday we have started this chapter. Some students have queries and I am repeating all points which we have discussed yesterday. So first, what is the mean of judiciary? What is the mean of judiciary? So judiciary is the part of country's government. Government का एक part है that is responsible for its legal system. किसके लिए responsible होती है? Legal system, which consists of the all judges and courts of the country. इसमें कौन कौन include होता है? All judges and courts, जो भी courts होते हैं हमारे country में, वो किसका part होते हैं? Judiciary का. Fine. After the definitions, we have discussed about what is the role of judiciary. Listen carefully. Role of judiciary. First is dispute resolution. Second is judicial review. Third is upholding law and enforcing fundamental right. These are the main. There are so many work of the judiciary, but we have described in the three parts. First is dispute resolving. I am explaining. In which I have explained that a dispute between citizen with citizens citizens के साथ citizens with the state government, one state government with another state government, and last is the central government with state government. All type of disputes solved by the judiciary. जितने भी dispute होंगे वो last में कौन solve करेगा? Judiciary. Now second is judicial review. Now what is the mean of judicial review? Judicial review is a final interpreter of the constitution, so it's the power to abolish the particular law passed by the parliament. It believes that it violates the basic structure of the constitution. Judicial review. जैसा कि इसका नाम है, if there is a supreme law making body is parliament. If any law passed by the parliament and judiciary think that this can be violate the fundamental rights, so judiciary can take the part of judicial review. वो उस law को वापस से भेज सकती है parliament में review के लिए. नेक्स्ट इज द अपहोल्डिंग लॉ एंड द इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट. आई थिंक इसमें आपको समझने की जरूरत नहीं है. जितने भी फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए हैं उसे प्रोटेक्ट कौन करता है? जुडिशरी. और जितने भी लॉ बने हुए हैं हमारे अकॉर्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? जुडिशरी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वाज इंडिपेंडेंट जुडिशरी. सो इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बेसिक जो पॉइंट्स है, फर्स्ट इज बेसिक साइन ऑफ अ ट्रू डेमोक्रेसी. यानी जहां पे डेमोक्रेसी है वहां जो जुडिशरी क्या होती है? इंडिपेंडेंट. तभी वो इम्प्लीमेंट भी होती है. नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ पावर. देयर इज अ थ्री पार्ट ऑफ गवर्नमेंट. आपका मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं हमने. एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, तीनों की पावर का क्या होता है? सेपरेशन. इसका मेन कॉन्सेप्ट है. इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है? इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है. वो ना तो लेजिस्लेचर्स के लिए वर्क करती है ना एग्जीक्यूटिव के लिए वर्क करती है. जुडिशरी वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ लास्ट इज द प्रोहिबिट मिसयूज ऑफ पावर द लेजिस्लेचर्स एंड एग्जीक्यूटिव. देखिए कई सारे लीडर्स होते हैं या फिर एमएलएज, एमपीज जिनके पास बहुत पावर होता है जस्ट बिकॉज वी हैव इलेक्टेड देम, सो दे कैन मिसयूज देयर पावर. फाइन. सो फॉर द उनको बाउंड करने के लिए या दे कांट यूज देयर पावर्स अदरवाइज, यानी कि अपने पावर को मिसयूज ना कर सके, तो उसके लिए जुडिशरी का क्या होना जरूरी है? इंडिपेंडेंट. कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर्स को कंट्रोल करता है जुडिशरी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स इन इंडिया. आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक. So students, now next topic is the structure of the court in India. What is the structure? क्या structure है? कौन कौन से कोर्ट होते हैं? हमारे इंडिया की बात कर रहे हैं हम. So we have divided into court system in three parts. In first level there is the Supreme Court. In second level High Court first. Second and third level is the lower court, district court and subordinate court. एक ही नाम है जिसको हम कॉमनली कहते हैं लोअर कोर्ट. एक बार फिर से
स्ट्रक्चर जो है, हमने जो कोर्स जो है हमारे इंडिया के स्ट्रक्चर जो है उसे हमने क्या किया है, 3 पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट लेवल बनाए हैं. फर्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट, सेकेंड इज हाई कोर्ट एंड थर्ड इज लोअर कोर्ट. नाउ एक्सप्लेनिंग दैट व्हाट वर्क तो हम बाद में इसकी डिस्क्राइब करेंगे, बट कहाँ कहाँ पर और किस किस के क्या पावर्स है. देखिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट इज एट द टॉप एंड टॉप लेवल, यानी कि सबसे पहला या सबसे जो लास्ट जो हम कहें, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है जिसके डिसीजन जो होते हैं फाइनल होते हैं. इसके डिसीजंस को कहीं पर भी आप क्या नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते. सो सुप्रीम कोर्ट इज एट द टॉप एंड लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. कहाँ पर है सुप्रीम कोर्ट? न्यू दिल्ली में. एंड इज प्रिसाइड ओवर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. इसके हेड कौन होते हैं? सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. और जो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसे अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट. कौन करता है? कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट. सेट अप ऑन द 26 जनवरी 1950. यही डेट है जब रिपब्लिक हुआ था हमारा इंडिया, और उसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था नई दिल्ली में. कब हुआ था? 26 जनवरी 1950. तो इसमें 3 चीजें आपको याद रखनी. फर्स्ट, इट इज द टॉप लेवल ऑफ द कोर्ट सिस्टम. सेकेंड, इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली एंड प्रिसाइड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. And last, it established on 26 January 1950. Clear? Now, second is High Court. High Court, for example, it is the country's highest court. जो हम कंट्री की बात करते हैं तो कंट्री का सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट. इसके बाद हम आते हैं स्टेट पर. स्टेट का जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है उसे हम कहते हैं हाई कोर्ट. जो स्टेट का हाईएस्ट, उस पर्टिकुलर स्टेट का क्या होता है? हाई कोर्ट. हाई कोर्ट, ईच स्टेट हैज अ हाई कोर्ट. हर एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है. विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दैट स्टेट. जो उस स्टेट का जो क्या होता है, सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है. अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं. अब हाई कोर्ट की बात करते हैं तो राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ है पता है आपको? और राजस्थान में जो हाई कोर्ट है वो है जोधपुर में, और उसकी एक ब्रांच है राजस्थान में. ठीक है, राजस्थान में नहीं, सॉरी, जयपुर में. फाइन. नाउ लास्ट इज द लोअर कोर्ट, जिससे क्या क्या नाम दिया गया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट. सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज इन द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल की. तहसील होती है, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, वहां पर हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होते हैं? कोर्ट्स होते हैं जो वहां के जितने भी डिस्प्यूट है उन्हें रिजॉल्व करते हैं. एंड इसको प्रिसाइड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज, जो इसके हेड कौन होते हैं? डिस्ट्रिक्ट जज. अब एक बार फिर से मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये किस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट है. लोअर कोर्ट किसके अंडर में वर्क करते हैं? हाई कोर्ट के अंडर. हाई कोर्ट किसके अंडर में वर्क करते हैं? सुप्रीम कोर्ट. और सुप्रीम कोर्ट जो टॉप लेवल का है उसके डिसीजन क्या होते हैं? फाइनल. नाउ फॉर एग्जाम्पल, आपकी बुक में एक स्टोरी भी है किस तरह से जो हम जैसे कोई डिस्प्यूट हुआ, फाइन, एनी डिस्प्यूट, कोई केस आया, सबसे पहले कहाँ जाएगा? लोअर कोर्ट में. फाइन. आपके आसपास में, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, तो सबसे पहले आप कहाँ गए? लोअर कोर्ट में. आपको वहां डिसीजन सुनाया गया. इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन यू कैन अपील टू द हाई कोर्ट. आप अपील कर सकते हैं कहाँ पर? हाई कोर्ट में. अब आपने हाई कोर्ट में आपको डिसीजन मिला, ठीक है, आप उसके डिसीजन से भी क्या नहीं हो सकते? सेटिस्फाई नहीं हो सकते, तो यू कैन चैलेंज द हाई कोर्ट डिसीजन इन द सुप्रीम कोर्ट. तो आप उसको कहाँ चैलेंज कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में. अब सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आएगा इट इज फाइनल. यू कांट चैलेंज द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. क्लियर है? देखिए, कहीं हमारे मोस्टली जब इंडिया की जुडिशरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, सो कहीं साल लग जाते हैं, कई बार साल, कहीं बार 5 साल, कहीं बार 10 साल, या कहीं बार 20 साल भी लग जाते हैं किसी केस को चलने में और उसके रिजल्ट को आने में. तो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस, जो लीगल प्रोसेस, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि आप पहले लोअर कोर्ट गए, फिर आप हाई कोर्ट गए, और फिर आप सुप्रीम कोर्ट गए, और इतने सारे जो केसेस आते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया काफी बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो डिसीजंस लेने में काफी देरी होती है. लेकिन एक कॉन्सेप्ट है कि
डिसीजन में चाहे दे रही हो, लेकिन किसी भी इनोसेंट पर्सन को ऐसा नहीं कि सजा हो। तो इसलिए टाइम होता है। एक बार फिर से, पहला लेवल है सुप्रीम कोर्ट, सेकंड है हाई कोर्ट और थर्ड है आपका लोअर कोर्ट। नाउ नेक्स्ट इज द टॉपिक इज द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम। कौन कौन से लीगल सिस्टम है आपकी बुक में? 2 तरह के हैं, क्रिमिनल एंड सिविल लॉ केसेस। उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। आपकी बुक में इसका डिफरेंस भी दे रखा है। देखिए, अकॉर्डिंग टू योर बुक, आवर लीगल सिस्टम डील्स विद द क्रिमिनल एंड सिविल लॉ केसेस। क्रिमिनल केस अलग होते हैं, सिविल केसेस अलग होते हैं। एक पूरा टेबल बना हुआ है आपकी बुक में, कौन कौन से आते हैं। क्रिमिनल लॉ डील्स विद द कंडक्ट सच एज डाउरी, डाउरी होती है दहेज को बोलते हैं, मर्डर, थीफ एटसेट्रा। ये केसेस किसका पार्ट है? ये पार्ट है आपके क्रिमिनल लॉ का। Civil law deals with the harm or injury of right of an individual such as dispute for property, कोई प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हुआ है। डिवोर्स केसेस जो होते हैं वो किसका पार्ट है? वो भी पार्ट है आपके सिविल लॉ का। अब आपका जो लास्ट टॉपिक है उसमें है आपका PIL पब्लिक लिटिगेशंस जो है उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी आपको याद रखना है, सबसे पहला स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट। दूसरा आपको याद रखना है कि जुडिशरी की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी, व्हाट इज द इंडिपेंडेंट जुडिशरी। लास्ट में PIL करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आपकी बुक में कुछ एक्सरसाइज भी है, वो भी हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। सो कीप लर्निंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।